Welcome everybody to Diabetes पर Charcha. Let's see what our panel of experts have to say on this. In our panel, I will introduce you to all the experts. First of all, I will introduce Dr. Paraksha. Dr. Paraksha is an experienced and established endocrinologist, and he is the director of Gujarat Endocrine Center. He has distinct combination of DM and DNB degree in endocrinology, and he is involved in various research projects related to endocrinology. Welcome, Dr. Parag. We have Dr. Banshi Sabu. Dr. Banshi Sabu is a chief diabetologist and chairman of Diabetes Care and Hormone Clinic. He is honored with fellowship of ACE, ACP, RCP from UK. Dr. Sabu is not only the organizing chairman of RSSDI, but he holds various leadership positions in various associations of endocrinology. He has launched a project, Diabetes Free India by 2030, which has been acknowledged by President of India. He has published various papers, he has presented various papers and publications in national and international conferences. Welcome, Dr. Banshi. Hello. Then we have Dr. Ramesh with us. Dr. Ramesh Goyal is senior consultant in diabetology and endocrinology at Apollo Hospital. He is faculty for certified course in evidence-based diabetes management by PHFI and the fellowship in diabetes by Royal Liverpool Academy, UK. He was awarded as the best diabetologist across Ahmedabad and Surat by Times of India Health Icon Awards. Welcome, Dr. Ramesh. Hello. We have Dr. Sanjeev Phatak. Dr. Sanjeev Phatak is diabetologist and metabolic physician of Gujarat with more than 2 decades of experience. He holds a fellowship in advanced diabetology and islet transplant from UK. He is the founder of Vijay Ratna Diabetes Diagnosis and Treatment Center. He is director of Juvenile Diabetes Association and he is joint director of Gujarat Diabetes Association. Welcome, Dr. Sanjeev. We have Dr. Vivek Arya with us. Dr. Vivek Arya is endocrinologist at Center for Endocrine Disease and Diabetes. He is also affiliated with various other hospitals in Ahmedabad. He has many publications in national and international journals. He has presented more than 50 papers in national and international conferences. So I welcome you all. Thank you. So today major topic would be understanding the diabetes and what complications it can cause if it is not controlled properly. Type 1 diabetes has a definite symptoms when they are developed. That is usually in the children. Then there is a weight loss, increased thirst, increased urination. But most of the type 2 diabetes, which are 95% of the populations, are actually not having any symptoms. So 95% of the type 2 diabetic patients don't have any symptoms. So they are absolutely silent. Occasionally patient may have symptoms like increased urination, increased thirst, some weight loss, recurrent infections, tiredness. But if you don't have symptoms, that does not mean that you are not suffering from diabetes. So it is better to keep on monitoring for your blood sugar if you are not having diabetes at least once in a year after 25 or 30 years of age, depending upon your genetic and physical lifestyle. You should be checking it regularly even if you don't have any symptoms. This is very important what you started, that diabetes is not like a fever or infection which is curable. It's a treatable disorder. It's a lifelong, it has to be treated. Once it is not treated, or those patients who are even treated and not achieve the target glycemic control, they are prone to develop many more complications. More of a microvascular complication which has like kidney disease, diabetes nephropathy, neuropathy, retinopathy, आँख की problem or kidney की problem, nerves की problem. But then there are more patients who develop heart disease, diabetes and heart attack, which is very common. There are stroke, paralysis का attack. So uncontrolled diabetes will lead to many more complications in diabetic patients. This is what we do also in our regular teaching or educating the patients. When we are treating the patient, we tell that the idea of treating a type 2 diabetic patient is to prevent you from many more complications. देखो टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट है जो इंसुलिन डेफिशिएंट है, उसके लिए तो 100% इंसुलिन चाहिए क्योंकि वो 100% इंसुलिन डेफिशिएंट है. जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो तो डायबिटीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण हुआ है और फॉलोड बाय बीटा सेल फेलियर है. तो उसमें स्टार्टिंग के अंदर डायबिटीज़ के पेशेंटों को हम काफ़ी हद तक गोलियों से कंट्रोल कर सकते हैं. और पिछले 15 साल के अंदर तो दवाओं में बहुत शोध होने के कारण बहुत तरह की दवाई है, मेडिसिन है, जिससे हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं.
लेकिन फिर भी काफ़ी पेशेंट जो कम से कम 60 से 70% पेशेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 10, 15, 20 ईयर्स के बाद में और अनकंट्रोल रखने वाले पेशेंट ज़्यादातर, क्योंकि जैसे हम ज़्यादा अनकंट्रोल रखेंगे तो हमारा पेनक्रियास में से जो इंसुलिन बनने की कैपेसिटी वो और कम हो जाएगी। तो वो जो लंबे समय तक 10, 15 साल, 20 साल तक यदि डायबिटीज़ और जितने ज़्यादा अनकंट्रोल रखोगे उनको जल्दी इंसुलिन कमी हो जाती है, और उन पेशेंटों को कंट्रोल करने के लिए हमारे को इंसुलिन की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपका कंट्रोल, नहीं कि ये इम्पोर्टेंट है कि इस पेशेंट को हमने इंसुलिन रखा है, इस पेशेंट को गोली पर रखा है। यदि हमारे को रिक्वायरमेंट लगती है कि इसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरी है तो वो पेशेंट राइट कैंडिडेट है फॉर इंसुलिन ट्रीटमेंट। कुछ पेशेंट है जो केवल एक टाइम इंसुलिन से भी कंट्रोल हो सकते हैं, कुछ 2 टाइम से और कुछ 3 टाइम से भी, और कुछ पेशेंट को इवन 4 टाइम भी देना पड़ता है, जैसे कुछ टाइप 1 डायबिटिक पेशेंटों को, और काफ़ी कुछ पेशेंट्स टेबलेट्स पर भी होता है। जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको नॉर्मली हम कई बार कॉम्बिनेशंस में रखते हैं, कुछ गोलियां भी होती है और इंसुलिन भी साथ में होता है, ताकि उनका अच्छा बेहतरीन कंट्रोल हो। कंट्रोल के साथ में पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होना चाहिए, यानी शुगर डाउन भी नहीं होना चाहिए, यानी ज़्यादातर समय उनका शुगर नॉर्मल साइड में रहना चाहिए, ना तो बहुत हाई और बिल्कुल भी कोई ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं हो कि उनका 72 से नीचे जाए। ऐसा हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं ताकि उनका शुगर अच्छा कंट्रोल। I'll like the audience to understand कि hypoglycemia मतलब क्या। So hypoglycemia technically is low blood sugar। अब डायबिटीज़ के लिए what is hypoglycemia? तो डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं, सारी मेडिसिन्स नहीं, कुछ मेडिसिन्स ऐसी है जो लो ब्लड शुगर को लो कर सकती है। जैसे एक तो इंसुलिन है और दूसरी ऐसी कुछ गोलियाँ आती है जो लेने से शुगर लो होने का रिस्क भी रहता है। अब what is low sugar in diabetic? So any blood sugar less than 70 is low sugar in diabetic। अब लो शुगर के लक्षण क्या है? तो लो शुगर के जो लक्षण हैं वो घबराहट होना, पसीना आना, भूख ज़्यादा लगना, फिर ट्रेमर्स, हाथ कांपना, धड़कन तेज हो जाना और जजमेंट एरर होना, मेमोरी लॉस होना, और अगर इसको तुरंत ट्रीट नहीं किया गया तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। फॉर्चुनेटली ये कोमा की स्टेज आने से पहले बॉडी कुछ ऐसे वार्निंग साइंस देते हैं जिससे कि पेशेंट को महसूस हो जाता है कि उसका शुगर ड्रॉप हो रहा है। जैसे कि मैंने आगे बताया, घबराहट, चक्कर, पसीना, शरीर कांपना, भूख ज़्यादा लगना, ये सब वार्निंग साइंस है। अगर डायबिटिक पेशेंट जो इंसुलिन या कुछ ऐसी गोलियां ले रहे हैं जिससे कि शुगर लो हो सकता है, उन्हें इसमें से कोई भी सिम्टम महसूस होता है तो तुरंत उन्हें कोई भी फॉर्म का ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। द इजीएस्ट फॉर्म इज पेशेंट कैन टेक 3 to 4 ग्लूकोज टैबलेट और 3 to 4 टीस्पून ऑफ ग्लूकोज और 3 to 4 टीस्पून ऑफ sugar. But if these things are not handy, then patient can take chocolates, fruit juice or any other food with high carbohydrate, high simple carbohydrate content food. Now, why hypoglycemia prevention is important? Prevention of hypoglycemia is important because hypoglycemia can be fatal. There have been deaths reported due to hypoglycemia. If a patient is having severe hypoglycemia and if a patient is not in condition to help him or herself, then the sugar may drastically fall to low levels and it can lead to irreversible damage to the brain, as well as it may have adverse effect on the heart also, that the heart beats and the heart rhythm may become irregular, which may lead to cardiac arrest. There are increased chances of having a heart attack if the blood sugar drops to dangerously low level. So my recommendation to all diabetic is that if you are on insulin, then you should be checking your blood sugar at least 2 to 3 times per day by a blood glucose monitoring device, that is what we call glucometer. And if you have symptoms of hypoglycemia and if you are driving, then you should stop driving, immediately take some sort of oral carbohydrate, and once your sugar is above the safe level, say above level of 80, then only you should proceed further. Otherwise, due to error of judgment, clouding of sensorium, there are increased chances of having a vehicular accident if you keep on driving with low blood glucose. And if you are on certain tablets which are prone to cause low blood sugar, then also you should frequently self monitor your blood glucose
and most importantly, if you are on insulin or any such tablet, then you should take frequent small meals so that you don't have the chances of or risk of hypoglycemia that frequently. If you are taking frequent small meals, then by and large you can avoid a major hypoglycemic or severe hypoglycemic episode. Even if you will have hypoglycemia, it would be mild and it could be easily tackled. So first of all, I would like to talk about the cardiovascular disease. Diabetics are more prone to cardiovascular disease, and 70% of diabetics, they ultimately die in one or other way due to cardiovascular condition. So cardiovascular condition includes heart attack, that is myocardial infarction, then stroke, and peripheral arterial disease. पैरों में ब्लड सर्कुलेशन की कमी, उसको हम मतलब पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज बोलते हैं, और उससे गैंग्रीन होने का रिस्क रहता है. तो 70% डायबिटिक पेशेंट दे डाई ऑफ एनी वन कॉज ऑफ दिस. It has to be a multi-pronged attack. You have to control the blood sugar, you have to control the blood pressure, you have to control the cholesterol, you have to control the body weight, and of course regular diet and regular physical exercise is must. Now coming to your question that how can a diabetic recognize the heart problem early? So one of the problem with the diabetic patients having heart problem is that the classical symptoms of heart attack, like the heart, this chest pain, it is typically not seen because the nerve supplying to the heart, they are affected due to diabetes. So a diabetic may have non-specific symptoms like difficulty in breathing, then uneasiness, then gas, acidity, and they keep on taking the gas acidity medicine, or they keep on eating sugar thinking that their sugar has gone down. But my message to the diabetic patients is that if they get any of such symptoms which are not typical of heart attack, but any symptoms which I mentioned, including gas, acidity, and uneasiness, and breathing difficulty, they should consult their doctor and at least get a ECG done, that is electrocardiogram. And if the symptoms are persistent despite the normal ECG, then they can go for further testing for heart disease. But जब किसी को न्यूरोपैथी होती है तो वो एक पहला लक्षण होता है जो लक्षण लेकर के मरीज डॉक्टर के पास आता है कि मेरे पाँव में जलन हो रही है या झंझनाहट हो रही है. इससे पहले उसका डायबिटीज 250 है, 300 है, 400 है, उसको ज़्यादा चिंता नहीं होती है. पर जब ये तकलीफ चालू होती है न्यूरोपैथी की तो तुरंत वो डॉक्टर के पास भागता है. तो इट इज़ अलार्मिंग सिम्टम कि ये जब ये होता है तब हमें तुरंत डॉक्टर के पास तो मिलना ही पड़ेगा. अब जब हम न्यूरोपैथी की बात करते हैं तो डायबिटिक मरीज में तरह तरह की न्यूरोपैथी होती है. उसमें से जो कॉमन है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है. पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब है जो हाथ पाँव के जो लंबे नर्व्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं और उसकी वजह से पाँव में झंझनाहट होना, पाँव में बैराश आ जाना, सेंसेशन कम हो जाने की वजह से. काफ़ी लोगों में सिम्टम्स इस तरह के आते हैं कि पाँव में से चप्पल निकल जाती है और उनको पता नहीं चलता है. तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है. जैसे फर्श पे चल रहे हैं तो उन्हें गर्म ठंडा फर्श महसूस नहीं होता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है न्यूरोपैथी का. और जब इस तरह के सिम्टम आते हैं तब आगे चल के उनको पाँव में सुई भी चुभ जाती है, तब भी उनको पता नहीं चलता है. और पता जब चलता है जब वो पक जाता है, उसमें पस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है. अब पेरिफेरल न्यूरोपैथी इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी वाले पेशेंट आगे चल कर के एम्प्यूटेशन के पेशेंट में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि न्यूरोपैथी की वजह से उनके पाँव में अल्सर होते हैं जो हील नहीं हो पाते हैं, ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं और आगे चल कर के उनको पाँव कटवाना पड़ता है. तो लोगों को किडनी में प्रॉब्लम होता है या किडनी फेल हो जाती है या डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, उसमें से 70-75% डायबिटिक के पेशेंट्स होते हैं. और ये रातों रात नहीं होता है. काफ़ी लंबे टाइम तक शुगर कंट्रोल में नहीं है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, स्मोकिंग कर रहे हैं, तब धीरे धीरे जाके किडनी डैमेज होती है. और जब पेशेंट को किडनी डैमेज होने की जो तकलीफ से जो सिम्टम्स आते हैं या जो कुछ तकलीफ महसूस होती है, वो करीब करीब 75-80% किडनी फेल हो जाती है. उसके बाद उसको सिम्टम्स आते हैं. तब तक पेशेंट को बिल्कुल नॉर्मल महसूस होता है. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप डायबिटीज़ में शुगर के साथ साथ किडनी का टेस्ट रेगुलर कराते रहिए. हम रिकमेंड करते हैं कि जो भी डायबिटिक पेशेंट है उसको फर्स्ट डे से, जब से डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ है तब ब्लड में क्रिएटिनिन, यूरिन में यूरिन रूटीन और माइक्रोअल्बुमिन करके जो टेस्ट होता है वो टेस्ट करना चाहिए. और अगर वो टेस्ट नॉर्मल आता है तो 6 महीने में क्रिएटिन और साल में एक बार प्रोटीन का टेस्ट जरूर कराना चाहिए. और अगर कुछ माइनर भी डैमेज आता है किडनी में, जैसे हल्का सा प्रोटीन आना शुरू होता है,
तब हम कुछ दवाई देते हैं जो किडनी का फर्दर डैमेज को प्रोटेक्शन देता है, जिससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है और जिससे किडनी को भी प्रोटेक्शन मिलता है। मगर अक्सर हमने देखा है कि जब हम वो दवाई दिखते हैं तो डॉक्टर के कैबिन से जब पेशेंट बाहर जाता है उसको लगता है कि डॉक्टर साहब ने बहुत सारी दवाई दे दिया है, मेरा ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है, मुझे ये दवाई दे दी है। जबकि हमने दवा दी है उसको मेनली किडनी के प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि उसका किडनी 5% डैमेज होना शुरू हो गया है। तो ज़्यादातर पेशेंट केमिस्ट के पूछ के, किसी को पूछ के अपने आप दवाई बंद कर देते हैं। तो अगर पेशेंट डायबिटीज़ के साथ साथ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है और किडनी में अगर डैमेज हुआ है तो उसका प्रोटेक्टिव मेडिकेशन चालू रखता है, तो ऑलमोस्ट हम डायबिटीज़ से जो किडनी डैमेज होती है उसको हम ऑलमोस्ट 90-95% तक हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ताकि ये सिचुएशन नहीं आए कि किडनी टोटल फेल हो गई और फिर किडनी के डॉक्टर बोलते हैं कि भाई पानी पीना भी मना है, सॉल्ट खाना भी मना है, रोटी खाना भी मना है, लिक्विड भी 1 लीटर से ज़्यादातर नहीं देते हैं, फिर डायलिसिस करना पड़ता है, किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो ये करीब 95% तक केसेस के अंदर उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर कुछ भी किडनी में डैमेज है तब जो किडनी को डैमेज करे ऐसी मेडिसिन होती है, जैसे कुछ पेन किलर्स है, कुछ एंटीबायोटिक्स है, और कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं जिसमें काफ़ी हैवी मेटल्स होते हैं, तो वे सारी किडनी को डैमेज करते हैं। और कई पेशेंट ऐसा सोचते हैं कि हम पानी ज़्यादा पिएंगे तो हमारी किडनी अच्छी रहेगी। ये भी एक गलत फहमी है कि हम ज़्यादा पानी पिए तो हमारी किडनी अच्छी रहेगी। तो अगर हम शुरू से डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखते हैं और रेगुलर किडनी का टेस्ट करवाते रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन आती ही नहीं है कि डायबिटीज़ के पेशेंट की किडनी फेल हो जाए और उसको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े। राइट कि डायबिटीज़ का इफेक्ट आँखों के पर्दों पे यानी रेटिना पे हो सकता है। तो इसके लिए हर साल डायबिटीज़ के हर पेशेंट को आँखों की भी जांच, आइडियली आँखों के डॉक्टर के पास ड्रॉप्स डाल के, आजकल नए मशीन्स आए जिसमें ड्रॉप्स डाले के बगैर भी रेटिना पे इफेक्ट है या नहीं है वो मालूम पड़ सकता है। तो रेटाइनोपैथी ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो रेगुलर चेकअप से प्रिवेंट किया जा सकता है या अर्ली डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जब कॉम्प्लिकेशन की बात चल रही है तो आप सबने सुना कि ये कॉम्प्लिकेशन सब डेंजरस है, जैसे किडनी पे इफेक्ट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, पैर कटवाना पड़ा, आंखें चली गई, ये सब होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि ये सब प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे हमारे कलीग्स ने बताया कि किडनी की जांच करानी चाहिए, हार्ट की जांच करानी चाहिए, पाँव की जांच करानी चाहिए, माइक्रो एल्ब्यूमिन का टेस्ट कराना चाहिए, HbA1c। जब पेशेंट को ये सब बताते हैं, आँखों की जांच करानी चाहिए, जब पेशेंट को ये सब बताते हैं कि ये चेक करना चाहिए, तो कई बार पेशेंटों को ऐसा लगता है इतनी सारी जांच, मुझे तो कोई तकलीफ है नहीं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये जांच कराएंगे, कोई भी रिपोर्ट में कुछ भी एबनॉर्मलिटी आएगी, अगर टाइमली ट्रीटमेंट मिलेगा तो आगे कॉम्प्लिकेशन रुका जा सकता है। तो ये जो खर्चा है, ये जो पेन है, वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, जैसे आंखें चली गई, किडनी फेल हो गई, तो उसके बाद में जो खर्चा होने वाला है, उसके बाद में जो तकलीफें होने वाली है, वो बहुत ज़्यादा है। सो वी शुड थिंक दैट प्रिवेंटिंग इज वेरी वेरी इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू ट्रीटिंग। जैसे संजीव ने बताया, ये पैसा जो हम खर्च कर रहे हो हमारी किडनी, आइज, हार्ट सबके प्रोटेक्शन के लिए। तो साल में अगर आप 1500 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो अगर आपको कुछ डैमेज है उसको हम प्रिवेंट करेंगे तो आपकी लाइफ भी इजी रहेगी और फ्यूचर में आपका इकोनॉमिक्स भी सेव होगा। और एक डॉक्टर पराग की बात पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो हम सारे टेस्ट कराते हैं, तो अगर नॉर्मल आते हैं तो देख के पेशेंट दुखी हो जाता है कि ये सारे टेस्ट तो नॉर्मल आए हैं। तो नॉर्मल आने पे पेशेंट को खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर मतलब ये इसमें से कोई भी टेस्ट अगर एबनॉर्मल आया तो उसका वो रिवर्स गेयर नहीं है, वो सीधा वो या तो वहीं हम अटका सकते हैं या उसको फॉरवर्ड गेयर में ही जाएगा। तो अगर आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं तो आपको खुश होना चाहिए, इंस्टेड के ये सारे रिपोर्ट तो नॉर्मल आए। वाइफ को पता होना चाहिए कि कुक क्या करना है, तभी वो आपको वो चीज़ सर्व कर सकेंगे, आप वो हेल्दी डाइट खा सकेंगे और हेल्दी रह सकेंगे। एंड अदर थिंग, जो रिलेटिव जो हैं आपके, उनको भी पता होना चाहिए, बिकॉज ऑल द रिलेटिव सेम जीन्स आर कमिंग। आज एक को डायबिटीज हुआ है तो अगले दिन अगले भाई को भी होने वाला है 2 साल 5 साल के बाद में। तो उनको भी पता होना चाहिए कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, नहीं है, और वो पहले से ही वो चीज़ को शुरू कर दें तो शायद वो डायबिटीज़ को प्रिवेंट भी कर सके, डिले कर सके। तो फैमिली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द डायबिटीज़।